Over 58 lakh voter names have been identified for deletion as the Election Commission of India released the draft electoral rolls for poll-bound West Bengal following the contentious Special Intensive Revision process. The release of the draft voter list marks the conclusion of the enumeration phase and the start of a more daunting task involving claims, objections and hearings. The second part of the three-phase SIR exercise will continue until February 2026. The final voters list will be published on February 14, 2026, ahead of the high-stakes Bengal Assembly elections. According to the data released by the ECI, a total of 58,20,898 voter names have been identified for deletion, which include around 24,16,852 electors identified as dead. This is followed by 19,88,076 voters who've either shifted permanently or migrated. So, of course, viewers, we are getting you this big breaking news at this point. Now, over 50 lakh voter names have been identified for deletion as the Election Commission of India released the draft electoral rolls for poll-bound West Bengal. This, of course, is following the contentious Special Intensive Revision process. The release of the draft voter list marks the conclusion of the enumeration phase and the start of a more daunting task involving claims, objections and hearings. The second part of the three-phase SIR exercise will continue until February 2026. The final voters list will be published on February 14, 2026, ahead of the high-stakes Bengal Assembly elections. According to the data released by the ECI, a total of 58,20,898 voter names have been identified for deletion, and I have Renik Datta joining me with more details. Renik, इस पे आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, एसआईआर का प्रोसेस जो शुरू हुआ था बंगाल में, उसका आज बोल सकते हैं कि आज ही ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने वाले थे, रिलीज करने वाले थे इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से जब खबर मिल रहा है कि और कुछ ही समय बाद ही जो एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट वो लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। मगर उसके पहले दो वेबसाइट चालू किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, eci.gov.in, जिसके माध्यम से जिनका नाम बात गया है इस एसआईआर का लिस्ट में, यानी 2026 का जो नया वोटर लिस्ट है, इसमें से जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है उसका जो डिटेल्स, वो डिटेल्स दिया हुआ है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम देने के बाद कौन सा स्टेट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी और कौन सा एरिया में वो वोट देते थे, उस बूथ का नाम देने पर ही जो लिस्ट है वो लिस्ट निकल के सामने आ रहा है। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि टोटल अभी तक 58 लाख के ऊपर लोगों का नाम जो है वो बाद हो चुका है, जिसमें 28,16,852 जिसका मौत हो चुका है। जो लोगों को नहीं मिला है उसका संख्या है 12,20,038 लोगों का ट्रेस नहीं मिला है। और 88,076 जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। और उसके साथ साथ ही 1,30,000 के ऊपर लोगों का नाम और भी जो डुप्लीकेट, इसी 8 लाख के ऊपर नाम जो है वो इस लिस्ट डिलीट किया गया है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। जी रैनिक, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। And now, of course, viewers, we're sharing this big breaking news with you at this point. Now, all right, viewers, so we will, all right, viewers, we're telling you about this big breaking news. Now, over 58 lakh voter names have been identified, as we're telling you, for deletion, as the Election Commission of India has released the draft electoral rolls for poll-bound West Bengal.
following the contentious special intensive revision process. The release of the draft voter list marks the conclusion of the enumeration phase and the start of a more daunting task involving claims, objections and hearings. Now this, viewers, of course is followed by, now of course I have Rainik Datta joining me with more details. अब Rainik, यहाँ पे सवाल ये भी है कि क्या ECI पब्लिश करेगा फुल लिस्ट ताकि लोग भी ऑनलाइन इसको पब्लिकली रिव्यू कर सकें? हाँ, एक्चुअली देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑनलाइन में ऑलरेडी एक लिस्ट दिया गया है, जिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आईडी दिया गया है, यानी वेबसाइट जो दिया गया है, जिस वेबसाइट के माध्यम से लोग जाकर देख सकते हैं कि उनका जो जगह था उस जगह में किसी उनका नाम है कि नहीं, यानी जो लिस्ट से नाम बाद गया है उस बाद जाने का लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं। जैसे कि ECI की तरफ से कहा जा रहा है कि CEO वेस्ट बंगाल .wb.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर कोई भी चेक कर सकते हैं कि जो डिलीटेड लिस्ट है उस डिलीटेड लिस्ट पे डिलीटेड वोटर लिस्ट उस लिस्ट पे उन लोगों का नाम है कि नहीं। जिसमें कहा जा रहा है कि कमीशन से खबर मिल रहा है कि 58 लाख के ऊपर लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें से करीब 24 लाख के ऊपर लोग 24 लाख 16,000 के ऊपर लोग जो है उनका मौत हो चुका है, जिसका नाम इस लिस्ट से बाद गया है। और उसके साथ साथ ही 12 लाख के ऊपर लोग 12,20,038 वोटर जो मिसिंग है, उनका नाम भी इस जगह पर नहीं है। 19,88,076 वोटर जो कि उस टाइम में प्रेजेंट नहीं था, यानी वो लोग एमिनेशन फॉर्म जो है वो कलेक्ट नहीं किए थे, उनका नाम नहीं है। और इसके अलावा 1,38,328 वोटर जिसका नाम डुप्लीकेट नेम है, जिसका इसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। टोटल 58 लाख के ऊपर लोगों का नाम ये लिस्ट में नहीं है। 58 लाख जो लोग हैं उनका जो नामों का लिस्ट वो ऑलरेडी पब्लिश किया गया है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से खबर मिल रहा है कि CEO westbengal.wb.gov.in ये वेबसाइट के अंदर जाने के बाद ही जो एरिया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया का नाम देने पर जिस बूथ पे लोग वोट देते थे उस बूथ का नाम क्लिक पर करने पर ही टोटल जो डिटेल्स वो डिटेल्स लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और जो लोगों का नाम है, यानी जिन लोगों का नाम डिलीट नहीं हुआ है उनका नाम भी और कुछ ही समय बाद ही लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सूत्रों की वजह से जो खबर मिल रहा है कि ये लिस्ट में करीब 7 करोड़ के ऊपर जो लोग उनका नाम रह सकता है। जैसे कि ECI की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम नहीं रहेगा, या तो जो लोग नए तरीके से फॉर्म फिलअप करने का कोशिश करेंगे वो भी कर पाएंगे, और जो जिन लोगों का नाम नहीं है, जिन लोगों का नाम डिलीट किया गया है, वो लोग अगर चाहे तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही जैसे कि कहा जा रहा है कि और कुछ समय के अंदर ही जो मेन लिस्ट, यानी जो रिवाइज लिस्ट, वो एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार किया जा सकता है, वो निकाला जा सकता है। और उसके साथ साथ ही जो नया वोटर्स है उनको फॉर्म 6 का इम्यूनेशन फॉर्म के साथ फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, ऐसा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। रैनिक, अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि